السلام علیکم بچوں، آج ہم جس نظم پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ علامہ اقبال کی مشہور نظموں میں سے ایک ہے جس کا عنوان ہے حقیقت حسن۔ حقیقت حسن پر گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں ہم علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 1938 کو لاہور میں انتقال کیا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے کہ علامہ اقبال کی نظموں کا پس منظر کیا ہے۔ ہم علامہ اقبال کی نظموں کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 1903 سے 1905 کی شاعری، 1905 سے 1908 کی شاعری اور 1908 سے 1911 کی شاعری۔ 1911 کی شاعری اور 1908 کی شاعری، ان کے جتنے بھی شعری مجموعے میں وہ نظمیں شامل ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری نظمیں پیغام سے مملو ہوتی ہیں، یعنی وہ کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ باغ درا میں شامل نظمیں ہوں، یا ضرب کلیم میں شامل نظمیں ہوں، یا عنوان حجاز میں شامل نظمیں ہوں، یا بال جبریل میں شامل نظمیں ہوں۔ اگر ہم پیغام سے مملو نظموں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی نظم ایک مکڑا ایک مکھی، لینن خدا کے حضور میں، مکالمے جبریل و ابلیس، شمع اور شاعر، ذوق و شوق، شکوہ جواب شکوہ، انہی طریقے کی نظموں میں ایک نظم ہے حقیقت حسن۔ علامہ اقبال کی اس نظم کو جب ہم بہت گہرائی سے مطالعہ کریں گے تب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بہت ڈرامائی کیفیت اس نظم میں استعمال کی ہے، یعنی ڈرامے کا عنوان جس طریقے سے ڈرامہ چلتا ہے اسی طریقے سے یہ نظم ڈرامائی کیفیت لیے ہوئی ہے، یعنی ایک غیر جاندار چیزوں کو خدا اور حسن کے درمیان جو مکالماتی پیرایا استعمال کیا ہے وہ لاجواب ہے۔ علامہ اقبال کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی نظمیں مکالماتی اور ڈرامائی کیفیت میں لکھی ہے وہ اس طریقے سے ایک سوال کرتا ہے ایک جواب دیتا ہے، ایک جواب دیتا ہے ایک سوال کرتا ہے، اسی طریقے کی نظم میں ہم حقیقت حسن کو رکھتے ہیں۔ اب ہم حقیقت حسن کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم حقیقت حسن کا پس منظر جان لیتے ہیں، یعنی حقیقت حسن ہے کیا۔ علامہ اقبال نے حسن کی حقیقت کس کو کہا؟ جب ہم دوسرے شعراء کو جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی حسن کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسے میر انیس نے جب حسن کا نظریہ پیش کیا تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، حسن ہے خالص سیاہ چہرے گلو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگسی جادو کے لیے، دامن کیس کہ فصاحت بکلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت۔ میر انیس نے جو حسن کا نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے، پہلا مصرع کہتے ہیں ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، یعنی ٹیڑھا پن جھکاؤ عیب مانا جاتا ہے، لیکن وہی ٹیڑھا پن اگر ابرو میں ہو تو وہ خوبصورت مانا جاتا ہے۔ تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، اندھیرا ظلمت وہ سب کو پسند نہیں، اندھیرا عیب مانا جاتا ہے، لیکن وہی اندھیرا وہی سیاہی اگر زلفوں میں ہو تو خوبصورت مانا جاتا ہے۔ تیسرا مصرع ہے حسن ہے خالص سیاہ چہرے گلرو کے لیے، حسن ہے خالص سیاہ چہرے گلرو کے لیے، یعنی تل، خالص سیاہ مانے تل، یعنی تل اسی رخسار پہ اچھا لگتا ہے جو خوبصورت ہو، یعنی گلو کرتا ہوا ہو، یعنی وہ سفید ہو، گورے گال رخسار پہ تل اچھا لگتا ہے۔ چوتھا مصرع کیا ہے؟ سرما زیبا ہے فقط نرگسی جادو کے لیے، سرما آنکھوں میں اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انہی آنکھوں میں اچھا لگتا ہے جس میں جو آنکھیں نرگسی، اس کے بعد پیر کا بند، پیک کا ایک دم بند، کیا دولادیکس یعنی جان لو، دولادیکس کہ فصاحت بکلام دارت، وہی کلام ہوتا ہے جس میں فصاحت یعنی روانی، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت، ہر بات موقع محل کے اعتبار سے ہونی چاہیے اور ہر نقطہ اس کے مقام پہ ہونی چاہیے، یعنی ہم گلدستہ ہیں۔ مثال کے طور پر حسن، حقیقت حسن کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے
एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते को हम जूते या चप्पल की अलमारी में नहीं रख सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए का क्यों हो। क्यों? क्योंकि उसका वो मकाम नहीं है। और जूता चाहे जितने का हो, 1 करोड़ का हो मिसाल के तौर पे, लेकिन उसको हम फ्रीज के ऊपर नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मकाम नहीं है। यानी हुस्न के नज़रिए में मीर अनीस ने बताने की ये कोशिश की है कि जो हुस्न जहाँ जहाँ एतबार से फिट बैठता है, यानी जो उसकी मुताबिकत रखता है हुस्न की, वही हुस्न है। अब हम अल्लामा इकबाल के नज़्म हकीकते हुस्न पे गुफ्तगू करें। वो मीर अनीस का नज़रिया है हुस्न का। अब हम अल्लामा इकबाल के हुस्न के नज़रिए को समझते हैं, यानी अल्लामा इकबाल ने हुस्न की हकीकत को किस तरीके से ड्रामाई और मुकालमाती पैराए में बयान किया है। अब हम एक एक मिसरा बच्चों पढ़ते हैं और उसको एक एक मिसरे की हम तशरीह करते हैं। तब देखिए अल्लामा इकबाल क्यों है, अल्लामा इकबाल को क्यों बड़े 4 शोरा में रखा जाता है, अल्लामा इकबाल का जो थॉट है, जो ख्यालात है, वो किस तरीके से हमारे सामने आता है, वो हकीकत हुस्न में हम समझते हैं। पहला मिसरा है हकीकत हुस्न का। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लासवाल किया। ये ड्रामाई कैफियत है, एक मुकालमा हो रहा है खुदा और हुस्न के दरमियान, और हुस्न खुदा की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और कह रहा है, पाक परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे हंसी बताया। यानी हुस्न जो है अपने को हंसी कह रहा है और कह रहा है तुमने मुझे हुस्न अता किया, तो मुझे लाजवाल क्यों नहीं बनाया, सवाल क्यों मुझे अता कर दिया, यानी लाजवाल बाकी रहने वाला क्यों ना बताया तुमने, मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं मिट जाने वाला हूँ। अब खुदा हुस्न से मुखातब होकर कह रहा है क्या, पहले मिसरे में हुस्न जो है वो खुदा की बारगाह में वो मुखातब होकर क्या कह रहा है, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। अब खुदा क्या जवाब दे रहा है, मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज़े अदम का फसाना है दुनिया। अब खुदा क्या कह रहा है हुस्न से, ये जो दुनिया है ये एक क्या है, एल्बम की सूरत में है, जहाँ तरह तरह की तस्वीरें लगी हुई हैं और एक एल्बम में एक तस्वीर आती है, एक तस्वीर जाती है। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। खुदा क्या कह रहा है, मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, ये दुनिया जो है एक तस्वीर खाने के मानी है, यानी एक एल्बम की सूरत में तस्वीर खाना है, तरह तरह की तस्वीरें लगी हुई है, एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर जा रही है, एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर जा रही है। फिर अल्लाह जो है हुस्न से मुखातब होकर क्या कह रहा है, मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज़े अदम का फसाना है दुनिया, और ये एक ऐसी लंबी रात की कहानी है जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती है। और जिस वक्त इस दुनिया को खल्क किया गया है, अल्लाह ने कुरान मजीद में दुनिया को खल्क करने की एक आयत है, वो फी सित्तति अय्याम, यानी खुदा ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया। यानी यहाँ रात का जिक्र हो रहा है, बहुत लंबी रात की कहानी है कि जिसमें ये मैंने मुंतबिक कर दिया है, बयान कर दिया है कि हुस्न जो है ये तस्वीर खाना है और इसमें एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर जा रही है, यानी हुस्न तुमको बाकी रहना नहीं है, हुस्न को बाकी रहना नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर उसके बाद तीसरा मिसरा क्या है, मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज़े अदम का फसाना है दुनिया। फिर खुदा क्या कह रहा है, हुई है रंगे तगय्युर से जो नमूद इसकी, हुई है रंगे तगय्युर से जो नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत सवाल है जिसकी। बिल्कुल एकदम खोल के अल्लाह ने हुस्न के सामने रख दिया है कि तुम्हारा वजूद क्यों लाजवाल नहीं बनाया, सवाल पजीर क्यों है। अल्लाह खुद ही कह रहा है क्या, वही हंसी है हकीकत सवाल है जिसकी, यानी अल्लाह हुस्न से फरमा रहा है कि जो चीज़ ज़वाल हो जाती है असल में उसका हुस्न उसी में छुपा होता है। यानी मिसाल के तौर पर बच्चों, मैं हमेशा के लिए अगर जवान हो जाऊं, हमेशा के लिए जवान रहूं, तो मेरी जवानी की कोई अहमियत नहीं है। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, इसी वजह से जवानी की अहमियत
बहुत छोटे से मिसालों में तुम्हारी समझ में आ जाए, इस वजह से इसी मिसाल दे रहा हूँ। आम मेरी समझ से दुनिया के सभी जितने भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में, सभी को आम एक ऐसा फल है जो पसंद है। लेकिन अगर आम 12 महीने अवेलेबल हो, यानी 12 महीने मौजूद हो, तो आम की लज्जत, आम की खासियत खत्म हो जाएगी। यानी आम की लज्जत और उसका हुस्न इसी में छुपा हुआ है कि आम चंद महीनों के लिए रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसी तरीके से हमारी जवानी यानी जवानी अगर हमेशा के लिए बाकी रहेगी तो जवानी की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती है। और यही जो है अल्लाह हुस्न को समझाना चाह रहा है। क्या कह रहा है? अब तीनों मिसरे मैं फिर से दोहराता हूँ, बच्चों देखो। खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों न मुझे तूने लाजवाब किया। मेरा जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। वही है रंगे तगय्युर से जो नूर इसकी, वही हंसी है हकीकत सवाल है जिसकी। तो हम बच्चों यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी अल्लाह ने एकदम क्लियर कह दिया है कि हुस्न की हकीकत यानी हसीन वही आदमी है, वही शख्स है, वही चीज़ है जिसका वजूद ना हो, यानी खत्म हो जाए, लाजवाल नहीं हो सकता है, सवाल पजीर हो। अब अल्लाह जो है, अब यहाँ देखिए ड्रामाई कैफियत का इस्तेमाल करते हुए, ये ड्रामाई कैफियत अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की है और कितनी खूबसूरत ड्रामा ये देखिए। अब क्या हुआ? अल्लाह और हुस्न से जो बातें हो रही है वो बज़ाहिर आसमान में हो रही है। वो कहाँ हो रही है? बज़ाहिर आसमान में। अब क्या हुआ? अब देखिए अल्लामा इकबाल ने मिसरा रखा, कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर में सुनी, कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर में सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर में सुनी। तो जब खुदा और हुस्न के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है वो देखिए किसने सुन ली चुपके से? कमर में। और बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हुस्न जाहिर सी बात है वो हसीन, उसके बाद कमर यानी चाँद, यानी वो भी हसीन है। हसीन है कि नहीं? यानी हुस्न जो हसीन है उसी तरीके से कमर भी हसीन, चाँद हुस्न की अलामत है। चाँद को शायरों ने हमेशा अपनी शायरी में हुस्न को हुस्न की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया है। अतः जब हुस्न और खुदा के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है आसमान में, तो कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। तो हुस्न और खुदा के दरमियान जो मुकालमा हो रहा है, जो गुफ्तगू हो रही है हुस्न के ऊपर, जो खुदा हुस्न को समझा रहा है, वो गुफ्तगू किसने सुन ली? कमर ने। और जब कमर ने सुन ली तो जाहिर सी बात है कमर खूबसूरत है, और अल्लाह ने पहले ही से कह दिया है कि हुस्न को ज़वाल होना है, तो यानी कमर चाँद को भी ज़वाल हो जाना है, यानी इसकी खूबसूरती भी मिट जाना है। खूबसूरती मिट जाने का मतलब ये है कि कमर रात में नमूदार होता है, दिन में गायब हो जाता है, यानी ये ज़वाल होता है इसका। रात में नमूदार होता है, दिन में खत्म हो जाता है, यानी दिन में उसका ज़वाल है। अगर दिन में भी चाँद दिखने लगे तो चाँद की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी, है कि नहीं? तो उसी तरीके से अब क्या कह रहा है? कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। अब जाहिर सी बात है कमर ने वो सारी गुफ्तगू अख्तरे सहर यानी सुबह के सितारे को बता दिया। अब बच्चों तुम्हें बताना चाहता हूँ, सितारा भी तो है खूबसूरत, सितारा खूबसूरती की अलामत है। उर्दू शायरी में, उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में शुआरा ने तारे को खूबसूरती की अलामत करार दिया है, उसी तरीके से जैसे कमर को खूबसूरती की अलामत करार दिया। तो वो जो कमर ने अपने ज़वाल होने की खबर सुनी है, तो उसने किसको पहुंचा दी ज़वाल होने की खबर? सितारों को। फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मीं के महरम। कितना खूबसूरत मिसरा है बच्चों। सहर ने, अब जाहिर सी बात है देखो सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप यानी तरतीबवार मुकालमा अल्लामा इकबाल बयान कर रहे हैं, यानी हुस्न खुदा से सवाल कर रहा है और वो गुफ्तगू कमर सुन रहा है। कमर ने फलक पे सहर को बता दिया यानी तारों को बता दिया है। अब तारा क्या कह रहा है? फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम।
सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को। कितना खूबसूरत मिसरा है। ये जो सहर यानी सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है, यानी हमारे अफ्तार का टाइमिंग होता है, हल्की हल्की सफ़ेदी होती है, उसी वक्त देखो रात में शबनम गिरी हुई होती है। और यहाँ देखो एक अल्फाज इस्तेमाल किया अल्लामा इकबाल ने, बहुत ही खूबसूरत, महरम, यानी शबनम बज़ाहिर आसमान में होती है और रात में टपकती है ज़मीन पर, लेकिन ज़मीन पर टपकने के बाद वो दोबारा आसमान की तरफ नहीं जाती है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने शबनम को ज़मीन का महरम कहा। समझ में आ रहा है? यानी अल्लामा इकबाल ने इस लफ्ज़ से इस शेर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्या कह रहा है? फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को। अब जाहिर सी बात है, सारी खूबसूरती वाली जो बातें हैं, कमर, सितारे और सितारे के बाद शहर, शहर क्या कर रहा है? शहर अब आके जो है शबनम को बता रहा है ज़मीन के महरम को, फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को, फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को। अब शबनम ने, जाहिर सी बात है, तारे ने कहा शबनम से कि ऐसा है, हुस्न को मिट जाना है, कमर को मिट जाना है, तारे को मिट जाना है, तो ऐ शबनम तुम भी तो खूबसूरत हो, तुमको भी मिट जाना है। कितना खूबसूरत ड्रामाई और मुकालमाती अंदाज अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद देखिए मिसरा क्या अल्लामा इकबाल रखते हैं, क्या? फलक पे आग हुई अख्तरे सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को, फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को। अब क्या हुआ? ये देखो मिसरा, भराए फूल के आंसू पयामे शबनम से, कली का नन्हा सा दिल फूल हो गया तुमसे। अब जाहिर सी बात है, फूल भी तो खूबसूरती की अलामत है। बहुत से शायरों ने उर्दू गज़ल में फूल को खूबसूरती की अलामत करार दिया, महबूब से मिसालें दी हैं। तो इसी वजह से अब देखिए हुस्न, तारा, चाँद, शबनम, अब उसके बाद फूल का जिक्र, यानी फूल को भी ये पता हो गया, शबनम ने बता दिया कि तुमको भी मिट जाना है। अब फूल के गमनाक आलम को देखकर कली जो बज़ाहिर अभी फूल नहीं हुई है वो भी रोने लगी। अब देखो क्या कह रहे हैं अल्लामा इकबाल, और यही पीक का मिसरा है, यानी सबसे अच्छा मिसरा ये रखा है क्या? फलक की बात बता दी ज़मीन के महरम को, भराए फूल के आंसू पयामे शबनम से, भराए फूल के आंसू पयामे शबनम से। उसके बाद देखो क्या मिसरा रखा है, शबाब चमन से रोता हुआ मौसमे बहार गया, चमन से रोता हुआ मौसमे बहार गया, शबाब सैर को आया तो सोगवार गया। अब कितना खूबसूरत मिसरा आया। तो उसी बाग में जहाँ फूल है, शबनम है, कली है, वहाँ जवानी भी टहल रही है, सैर को आई है। अब जाहिर सी बात है, जवानी भी खूबसूरत है, तो जवानी को भी मिट जाना है, जवानी को भी मिट जाना है। अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरती से दुनिया की बेसबाती का जिक्र, यानी अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बाकी हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, उनको फना हो जाना है। अल्लामा इकबाल ने मुकालमाती अंदाज में तरतीबवार चाँद, सितारा, शबनम, फूल, जवानी को लाजवाब का जिक्र करके दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया। यानी अल्लाह ये समझाना चाहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बाकी हैं वो फ़ानी है, यानी उनको ज़वाल 100% 100% उनको ज़वाल होना है, और उन्हीं में उसकी